What are green gases? GHGs. GHG is a collective terms of airborne chemicals in the Earth atmosphere that prevent the heat from the escaping into space. The burning of the fossil fuels, use of the fluoride gases, and deforestation increase the atmospheric concentration of GHG. As this occurs, the global average temperature increase, triggering the related climate change and impact the human and environment health. The resultant phenomena known as the greenhouse effects, which is shown. The greenhouse emission from human activities strengthen the greenhouse's effect, causing climate change. Most is carbon dioxide from burning fossil fuels, coal, oil, and natural gases is majorly causing the greenhouse gas emissions. ग्रीन हाउस गैस जो सबसे ज़्यादा निकलता है वो फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस से निकलता है, जिसके कारण the human caused the emission have the increased atmospheric carbon dioxide by about the 50% over the pre-industrial levels. The growing levels of the emission have varied, but it was consistent among all green gases. Second point, electricity generations and transportation are major emitters. The largest single source being coal-fired power station with 20% of greenhouse gases. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल जनरेशन में जो कि हमारा कोल फायर बॉयलर पावर स्टेशन से थ्रू होता है, उसे 20% के आसपास ग्रीन हाउस गैस निकलता है, जो कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करता है. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जनरेशन से. द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द मीथेन इज एग्रीकल्चर, क्लोजली फॉलोड बाई द गैस वेंटिंग एंड फ्यूटिव इमिशंस एंड फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री. तो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम. इसके हिसाब से बोला जाता है कि इन 2030 में एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जो है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाएगा. सोर्स कैसे हो सकते हैं हमारे ग्रीन हाउस गैसेस जनरेशन का? तो here we are going to be discuss about the sources, the categorized and sources of the federal greenhouse gases emission. Greenhouse emissions are separated into three categories: scope 1, scope 2, scope 3. ये तीन हिस्सों में divided है. नंबर स्कोप 1 में emission are direct emission generated by the NIH facility. Some examples include boilers, chillers, generators and other power plant operations. स्कोप 1 में जो डायरेक्ट हमारा CO2 जनरेट होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस लाइक बॉयलर रन, चिलर ऑपरेशन, जनरेटर्स एंड अदर पावर प्लांट, वो हमारा स्कोप 1 में आता है. दूसरा जो स्कोप 2 डायरेक्ट एमिशन जनरेटेड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द परचेज इलेक्ट्रिसिटी पावर, वो हमारा नंबर 2 में आता है, जिसमें हम जनरेटेड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ परचेज इलेक्ट्रिसिटी पावर. स्कोप 3 emission are indirect emissions generated from the source such as employee business travel and employee computing. स्कोप 3 है, उसमें ट्रेवल के कारण जो हमारा emissions होता है वो हमारा स्कोप 3 में आता है. तो यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं कि द ग्रीन हाउस एट द इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, एनी गैस डेट absorb and emit infrared radiation in the wavelength range emitted by the earth is considered as the GWG. Water vapor is the most abundant GHG in the earth atmosphere. Regulated greenhouse gases including carbon dioxide, methane, CH4, nitrous oxide and 2O, and fluorinated gases, hydrochlorofluorocarbons, HCFC, hydrofluorocarbons, HFC, and the sulfur hexafluoride as associates. Some of these regulated gases are emitted from the facility and laboratory source in day-by-day operations. So, ये CO2, carbon dioxide, methane, and nitrous oxide is the main gases which come from the generation of the power electricity, then coal boilers emissions. Coal boiler also created the system under this one. Now, under the project sustainability, the way to reduce the greenhouse emission gases, हम कैसे ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के सिनारियो में. तो सबसे पहले तो इसमें निकलते आता है हमारा कि वे नंबर 1 फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ रिड्यूस द ग्रीन गैसेस एमिशंस. व्हेन इट कम्स टू एक्ट
of actually reducing these greenhouse gas emission, there are the several paths you can take it, and the more angles you approach while working to solve the issues of effective greenhouse gases emission reductions, the more effectively your final effort will be. Number one, cut initial consumption of the energy. सबसे पहले तो हमको जो एनर्जी यूजेस है उसको हमको कम करना है, और बाई विच वी कैन रिड्यूस दिस वन, रिप्लेस द फॉसिल फ्यूल विद द क्लीनर एंड ग्रीनर अल्टरनेटिव्स। और दूसरा जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स है लाइक कोल है, तो हम कोल हो गया तो उसको हम लोग कैसे दूसरे फ्यूल के साथ में यूज़ कर सकते हैं। कोल हो गया, अपना HST पेट्रोलियम्स हो गए, इनको हम लोग कैसे फॉसिल फ्यूल्स से क्लीनर और ग्रीन जो फ्यूल्स है उसमें कर सकते हैं। बट टुवर्ड द हायर एनर्जी एफिशिएंसी रेट्स, हमको जो भी इक्विपमेंट लगाने हैं उसमें हायर एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट का यूज़ करना है। एंड परचेज द कार्बन ऑफसेट्स, और परचेज द कार्बन ऑफसेट्स मतलब कार्बन ऑफसेट्स तो हमको परचेज करना है जिसमें कि कार्बन जो मिनिमम मात्रा में ही वहाँ पे डिपॉजिट हो एटमॉस्फेयर में। तो हियर फर्स्ट द कट ऑफ द कंजप्शन, सिंपली ट्राइंग टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी एंड सप्लाई योर ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग ड्यूरिंग इट्स डेली ऑपरेशन कैन हैव द ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इफेक्टिवनेस of green gases emission reduction program. Number 2, clean fuel alternatives with electrical vehicle innovative in solar energy, and countless more option available within the scope of moving away from the fossil fuels and coal as a primary source of energy, and as well as the huge subsequent benefit when it come to ROI and environmental protection. There really no downside of the birthing towards the using the only the clean fuel. The energy efficiency when the reduction operating costs as well as the emission reductions hinges on the simple act of investing in more energy efficient equipment. The decision is simple, computing to installation more energy efficient system through a company functioning areas, whether retails, production warehouses, something entirely different is to be to do. Number 4, carbon offset. A carbon offset is a reduction in emissions of the greenhouses made in order to compensate for emission made by your company. The money used to purchase these offset is used to finance project, forest preservations, energy efficiency efforts, landfill methane capture that would not have been built without that the investment and the funding. And these are the strategy under your belt supporting to the environmental. We live in a well and pushing towards the next level of excellence within your organization more accessible than ever before. तो दी जो 4 पैरामीटर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो एनर्जी सेव करें, सबसे पहले तो हमको एनर्जी को जो यूजेस हो रहा है उसको हमको कम करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा जो है जो फ्यूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हमारा FO हो चाहे हमारा कोल हो, तो उसको हम लोग कैसे ग्रीन फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक हम लोग वहाँ पे हम लोग ब्रिकेट फायर बैलर्स लगा सकते हैं जो हमको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में 80% के आसपास हमारा जो ग्रीन हाउसेस एमिशंस है उसको रिड्यूस कर सकता है। हम तो हाईली एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट में जाना चाहिए जिनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो। जैसे मोटर्स की हम लोग बात करते हैं, इंडक्शन मोटर्स आज की डेट में जो अवेलेबल i5 रेटिंग तक आती हैं तो उसमें जा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के रिसोर्स पे हमको काम करना चाहिए जिसमें हम वी कैन यूज़ द पावर फ्रॉम सोलर थ्रू विंड। और कार्बन परचेज लाइक फॉरेस्ट में हमको हम भी नीड टू इन्वेस्ट समथिंग टू reduce the carbon offsets and which we can purchase for the betterment for the forest maintenance and other energy efficient efforts and landfill methane capture. These are the activities very much important for the way to reduce the greenhouse gases. Now in INTAS, what kind of the activity which we did it in INTAS? So here we are going to discuss about the total 5 number of activity which we did it in INTAS for the reduction of the greenhouse gases under the sustainability program. Number 1, energy conservation program under IES. Number 2, water conservation initiatives under the project PANI. Number 3, LED 7,220 LED are in operations. We made it. Number 4, renewable power procurement in place of the non-renewable resources. Number 5, 37% of boiler steam generation by breathed solid fuels in place of coal. And the GEB, power factor improvement for the reduction of the losses in the system. So these 6 initiatives which we taken in INTAS. So first we are going to discuss about the various sustainability project which we did it. Number 1,
Under this we have taken the power from the wind power and the solar from the third party vendor named Trinetra, and nearly 20 to 25% power which we are taking from the this directly solar and 30% 2.2 megawatt power which we taking from the our through the windmill. So these entire the total TWH, when we talk about the nearly 1 CRs, 1.4 CRs units will be taken through these sources, and which help us to reduce the carbon dioxide by 11 megawatt, 11,510 ton in tons. तो यहाँ पे हमने जो पहला जो पॉइंट है वो हमने पावर जो लिया है वो विंड पावर यूज़ किया है, सोलर पावर यूज़ किया है इन प्लेस ऑफ द थर्मल पावर, और जिसमें कि हम लोगों ने इसमें हमने थर्ड पार्टी वेंडर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट टाई अप किया था, जिससे हमने जो टोटल पूरे साल में 2021 में जो यूनिट्स हमने लिया था 1.5 मेगा TWH हमने लिया था, मतलब 1,47,34,422 यूनिट्स जो है हमने हमने विंड और सोलर के थ्रू लिया था, जिससे कि हमको 11,510 टन कार्बन एमिशन रिडक्शन में हेल्प मिला। दूसरा जो एक्टिविटी हमने किया था वो हमारा था कटिंग एनर्जी लॉसेस। तो सबसे पहले तो हम वहाँ पे ATS ऑटोमेटिक ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम हमने लगाया था, जिससे कि हमारा TWH प्लस TR वो इंक्रीज़ हुआ था हमारी यूटिलिटी चिलर्स में, जिससे कि हम तो टोटल TWH जो सेव हुआ था वो 5,25,000 हमने लिया, जिससे हमको 410 टन एनर्जी सेव साल का में मौका मिला था। हमने LED जो रिप्लेस किया था 7,000 के आसपास हमने LED रिप्लेस किया था, जिससे हमने 7,500 के आसपास यूनिट बचाया था, और जिससे हमको 5.9 टन यूनिट हमने सेव किया। द चिलर ऑपरेशन एलिमिनेटेड एंड यूटिलाइज सेंट्रलाइज सिस्टम्स। हमने यहाँ पे अपनी जो कुछ चिलर्स थी जिनको हमने सिस्टम से एलिमिनेट किया, और वहाँ पे अभी हमने 2 चिलर 70 TR चिलर्स तो हमने स्टॉप किया, जिससे कि हमको टोटल 45,000 के आसपास एनर्जी हमारा सेव हुआ। अगर हम इसको CO2 टर्म से बात करते हैं तो वो 35 टन के आसपास आता है। देन सम ऑफ द इनिशिएटिव लाइक हमारे जो कुछ इक्विपमेंट थे वो कंटिन्यूशन रनिंग में रहते थे, उसको हमने होता है लाइक AHUs स्टॉप ड्यूरिंग द नॉन रूटीन एक्टिविटी वॉज मैन्युफैक्चरिंग, जिससे कि हम तो 7,40,480 के आसपास यूनिट हमने सेव किया है, जिसका रिजल्टेंट जो है 578 टन यूनिट ऑफ कार्बन इन टन्स हमने सेव किया है। कूलिंग टावर टेम्परेचर इंटरलॉकिंग कूलिंग फैन ऑपरेशन स्टॉप ऑटोमेटिकली ऑन द कूलिंग वाटर टेम्परेचर अचीव्ड, तो जिससे हमको जो टोटल यूनिट सेव हुआ था वो 54,800 के आसपास हुआ, जिससे हमको 42 टन स्टीम हमने कार्बन एमिशन रिड्यूस किया है। सिमिलरली OC2 में भी हमने एनर्जी जो नॉन यूजेबल जो इक्विपमेंट थे उन पर हमने इंटरलॉक किया है, और वहाँ पे हमने 6 लाख के आसपास सेव किया, जिसका रिजल्टेंट जो था नियरली 468 कार्बन डाइऑक्साइड इन टन्स हमने रिड्यूस किया। BFD इंस्टॉल इन जनरल RO प्लांट में हमने BFD इंस्टॉल किया, जिससे कि हमारा 40,000 यूनिट के आसपास सेव हुआ था, और जिसको कि हमने हमारा CO2 एमिशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे 30 टन के आसपास हमने रिड्यूस किया। तो देयर इज द मोस्टली एनर्जी कंजर्वेशन प्रोडक्ट विच वी डिड इट नाउ अंडर प्रोजेक्ट पानी। यहाँ पे हमारा RO जो रिजल्ट जो आता था तो उसको हमने ऑप्टिमाइज़ किया है, और उसको जो हमने ऑप्टिमाइज़ करने के बाद में जो हमारा TW जो सेव हुआ है वो 3,333 के आसपास हमने TW सेव किया, जिससे हमको नियरली 2.4 टन स्टीम तो ये कार्बन एमिशंस हमने रिड्यूस किया है। तो टोटल अगर हम बात करते हैं पूरे साल में तो मोस्टली 1,67,80,534 मतलब नियरली 1,70,00,000 के आसपास हमने यूनिट तो सेव किया, और यूनिट हमने जो है सेव किया है या हमने उसको अल्टरनेट वे में लिया है, जिसका इफेक्ट जो था वो 13,000 टन हमने कार्बन एमिशन को एटमॉस्फेयर में जाने से रोका है। तो ये जो टॉप प्रोजेक्ट थे जो हमने इसमें किए थे, और ये प्रोजेक्ट का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट तब बढ़ जाता है जब हम लोग आज के सिनारियो में रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करने के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द सोर्सेस। हमने पहले बात किया था कि सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी के लिए हमको कट
अपनी जो एग्जिस्टिंग यूजेस हैं उसमें कट करना चाहिए। दूसरा जो है जो फ्यूल्स आ रहे हैं, जो हम जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उसके फ्यूल्स के बारे में, अल्टरनेटिव के बारे में सोचना चाहिए, पावर के अल्टरनेटिव के बारे में सोचना चाहिए। और तीसरा कार्बन क्रेडिट्स को अगर हम बाई आउट कर सकते हैं तो वो विच वी आल्सो नीड टू वेल होती है। 4 मेजर ऑप्शंस फॉर रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशंस इन एटमॉस्फेयर। तो हियर नाउ the major point which we are going to discuss here, the renewable energy wind procurement instead of the thermal power utilizations. So through power wheeling we procured power from the alternate and capacity power, and which was generation through the wind and saved the thermal power from the April 2022. During this period we utilized our third party provided total kWh was I already mentioned 1.447 lakhs as the source of the renewable energy through wind. Why this nearly 11,510 tons of CO2 emission avoided. And when we compare to total emission in CO2 reduction in 2020 and 2021, and the total emission in total emission reduction by the 6,441 tons. यूज़ टोटल नियरली 11,000 के आसपास हमने जो जनरेशन था वो स्टोर होता है। तो टोटल 12% ऑफ टोटल पावर हम जो आज के समय में ले रहे हैं, हम लोग विंड के थ्रू ले रहे हैं, विच इज़ द टोटल विच इज द यूज इम्पैक्ट ऑन द सोशल दिस वन। देन सस्टेनेबिलिटी के बारे में जो हमारा थर्मल पावर का जो यूज था उसके बेसिस पे हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे। लाइक सोलार को भी हमने इंट्रोड्यूस किया है, अभी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में आया है। दीज आर द सस्टेनेबल मॉडल विच वी टेकन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको सस्टेनेबिलिटी किसी भी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में समझना कि कार्बन जो गैसेस होती हैं वो कौन सी गैसेस होती हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, दैन मीथेन, और उसके बाद में फ्लोरो, नाइट्रस फ्लोरो। तो ये जो गैसेस होती हैं इनके बारे में हमको समझ के टॉप प्रायोरिटी पे एक्शन लेने से हम इन सब चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि जो हमारी गैसेस होती हैं वो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर को इम्पैक्ट करती हैं, और सबसे ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर को इम्पैक्ट करती हैं तो उससे जो आने वाले समय में हमारा जो टेम्परेचर है वो 1.5 के आसपास बढ़ सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर में रोकने के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा सोचना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो हमने डिस्कस किए थे यहाँ पे। लाइक जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, and the fluorinated gases like HC, hydrochlorofluorocarbons, then perfluorocarbons and sulfur hexafluoride। ये सब जो गैसेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो वी नीड टू बी वर्क आउट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द दीज गैसेस। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउसेस के सोर्सेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा निकलता है आपका फ्यूल से, ऑयल से, नेचुरल गैस से, प्रोपेन से, वेस्ट टू प्रोड्यूस हीट टू एंड इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन डाइऑक्साइड ये जो सोर्सेज होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं। मीथेन जो निकलता है वो हमारा निकलता है ट्रांसमिशन से, स्टोरेज ऑफ द नेचुरल गैसेस एंड डीजल फ्यूल ऑयल से निकलता है मीथेन। देन नाइट्रस ऑक्साइड जो निकलता है कंबस्शन ऑफ द फ्यूल ऑयल, नेचुरल गैसेस, प्रोपेन एंड वेस्ट एंड प्रोड्यूस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नाइट्रस गैस एंड टू उससे भी निकलता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो निकलते हैं नॉर्मली एमिशन फ्रॉम द चिलर्स ऑपरेशन, जो चिलर में जो गैस होती है R22 फ्रियोन जो गैसेस होती है उससे निकलता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो हमारा HC134A एमिशन फ्रॉम द चिलर ऑपरेशन से निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है HH6 डाई इलेक्ट्रिक यूजिंग द ट्रांसमिशन इन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा इससे निकलता है। तो ये जो 6 तरह की गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड and hydrofluorocarbons and hydrofluorocarbons और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये जो गैसेस होती है इस पर हमको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देते हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब सस्टेनेबिलिटी के बारे में जो हमने डिस्कस किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचना चाहिए। हमको 3 तरह से जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज पे स्कोप 1 में जो हमने बात की ग्रीन हाउस गैसेस emissions from the source that are owned controlled by the individual factory, greenhouses goes greenhouse scope 2 greenhouses gases result in the generation of the electricity, heat and steam purchased by the individual organization. Then 3
जो स्कोप है वो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द सोर्स नॉट ओन्ड एंड डायरेक्टली कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन बट ड्यू टू द एटमॉस्फेयर इफेक्ट दिस मे कम इनटू लाइक द एम्प्लॉय कम्युनिटी बिजनेस ट्रबल्स ऑल कम इनटू दिस पिक्चर। तो ये सारे जो सोर्सेज थे बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी के बारे में और हमको इनके बारे में सोचते कि आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। Electricity saving in chillers. The strategy to reduce the energy and lower operating cost in chillers. Behind thinking of the reducing the energy consumption of the cooling tower chilling system, many assumptions and large expense will be incurred. However, this does not have to always be case if certain design considerations are made. This article offers the few simple cost-effective suggestions for achieving the energy reduction in the system. There are numerous design possibilities achieving the high energy reductions. So when considering the heat rejection equipment, the two primary goals of the conserving energy are to reduce the environmental impact of a given system, decrease the associated cost of that system. System that consumes less energy reduce carbon dioxide emission from the power generations and lower recurring cost for purchasing that energy. Broadly, some energy saving strategies like energy saving initiatives. Use of the BFD is for save energy, reduce energy by using the design based methods, oversized units, decrease the energy used to source of power generations by using the evaporated equipment, well to wheel based energies. So first here we are going to be discussing about the BFDs. The fan motors of the cooling tower is large source of the energy consumptions. Applying the energy saving components such as the variable frequency drive will result the significant saving in this. The BFDs are electronics to adjust the input power to the fan motors and varying the fan speed with frequency there. The fan vary their air flows in order to compensate the changes in ambient air and load conditions. BFDs are more efficient at the varying the airflow compared to the fan cycles, fan discharge dampers, mechanical speed dampers. BFD have the built-in sensor control the automatically adjust fan speed to the exact requirement based on the current conditions. BFD reduce the energy consumption by simply slowing the motor at time while still maintaining the proper airflow. Fan power is proportional to the cube of the fan speed, air speed. Number 1. Here, allowing the small decrease in speed to gradually reduce the energy consumptions. They are slowing and fan speed by 80% of the original speed will decrease the fan motor energy consumption by 50%. यहाँ पे हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि BFD reduce the energy consumption by simply slowing the motor at a times while still maintaining the proper flow. Fan power is proportional to cube of the fan speed. मतलब फैन का जो पावर होता है वो क्यूब ऑफ स्पीड के प्रोफेशनल होता है. डेट मीन्स आई कैन से P इक्वल टू N क्यूब इफ P1 अपॉन P2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 विच वी कैन से हेयर. तो यहाँ पे बस समझ लेते हैं फॉर्मूले से क्या होता है, सब समझ लेते हैं. अलाउ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एनी सेंट्रीफ्यूगल और एक्सेस फैन विद द कांस्टेंट डायमीटर एंड चेंजिंग द स्पीड, ये जो फार्मूला P1 अपॉन P2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 तो ब्रेकेट क्यूब, मतलब P1 जो P2 है वो N1 N2 क्यूब के इक्विवेलेंट है. Where P1 is the initial power consumption, P2 the final power consumption, N1 is the initial fan speed and N2 is the final fan speed. When started, fan motor have the high induced current resulting in the large energy draw. This energy penalty is avoided to using the BFD, which act as the soft starter by varying the speed at the programmable rate and energy saving from the BFD reduce the annual operating cost. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि थोड़ा सा भी हम अगर स्पीड में वेरिएशन करें तो हमारी एनर्जी जो होती है वो हमारी काफ़ी कम हो जाती है. मतलब यहाँ पे मैं सीधा बोल सकता हूँ कि अगर मैंने अपने CFM को 20% रिड्यूस किया तो उसका इम्पैक्ट जो एनर्जी के ऊपर आएगा इट गोइंग टू बी यूज. नाउ सेकंड पॉइंट, रिड्यूसिंग द एनर्जी बाय द यूजिंग द सिस्टम बेस्ड डिजाइन. तो यहाँ पे हमको समझना है कि अप्रोच टेम्परेचर and difference in temperature between the bottle leaving the cooling, entering the condenser and entering the wet valve has the more significant influence the cooling water size and energy consumption than other parameter affecting the cooling tower size.
तो यहाँ पे सबसे पहले जो पानी हमारा कूलिंग चिलर में इंटर करता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर हम तो कूलिंग एनर्जी सेम पे काम करना। तो चिलर एनर्जी विच रिप्रेजेंट ओवर द 85% ऑफ द फुल लोड सिस्टम एनर्जी यूजेस इज रिड्यूस एज ए फंक्शन ऑफ द अप्रोच टेम्परेचर, thus focusing how best to run the cooling towers to achieve the approach temperature that optimize the chiller operation at prime conditions. In all but lowest bed wall temperatures greater than 66 Fahrenheit, when cooling tower is designed to improve the chiller efficiency. The energy saving from the chiller will far surpass additional cooling tower energy uses as the design. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम तो जो इनके कूलिंग टावर में जो कूलिंग टावर से जो पानी आ रहा है जो चिलर के कंडेंसर में जा रहा है उसका टेम्परेचर पे मॉनिटरिंग। Using the system-based design to reduce the energy consumption means selecting and operating the system component in a manner that use the at least amount of energy annually. The chiller energy consumption can be reduced considerably by decreasing the approach temperature, and lowering the approach temperature can be achieved by reducing the entering water temperature. The lower the entering condenser water temperature, then lower the condensing pressure, and which means less work that must be done by the compressors. For centrifugal compression, centrifugal chiller, every 1 degree Fahrenheit, 0.5 degree centigrade reduction in the condenser water temperature will improve the compressor efficiency by 1.1%. तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि किसी भी सेंट्रीफ्यूगल चिलर में अगर हम लोग 0.56 डिग्री का भी रिडक्शन करते हैं जो हमारा टेम्परेचर कूलिंग टावर से आ रहा है और जो हमारे कंडेंसर में जा रहा है तो उसके कारण हमारा जो कंप्रेसर है उसकी इफिशिएंसी जो होती है 1.1% बढ़ जाती है। तो देयर आर द टू वे टू टेक द एडवांटेज ऑफ द लोअर कंडेंसर वाटर टेम्परेचर। नंबर सिस्टम बेस्ड डिजाइन। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो सिस्टम बेस्ड डिजाइन पर हम लोग बात कर रहे हैं, डिजाइन द सिस्टम फ्रॉम द आउटसेट to have the lower approach temperature for the design by using the physical larger unit than the application call. The larger unit accommodates a bigger and lower HP fan which uses less energy operate. The system based design, the operate to system by running the cooling towers to drive the condenser water temperature as low as possible, utilizing the fan speed on non-design day wet wall temperatures. तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने डिस्कस किया। एक तो था सिस्टम बेस्ड डिज़ाइन 1, जिसमें कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारा अप्रोच जो है उसको हमको बाय डिज़ाइन कम रखना है। दूसरा जो बात कर रहे हैं कि हमको फैंस कूलिंग टावर टू ड्राइव टू कंडेंसर वाटर टेम्परेचर एज लो एज पॉसिबल, दूसरा हम कम करते रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सबसे ज़्यादा हमको फोकस करना पड़ेगा कंडेंसर की उसमें ना। जो तीसरा जो पॉइंट निकल के आता है स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द एनर्जी एंड लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है ओवर साइज वर्सेज ट्रेडिशनल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हमने डाटा देखा है कि वाई यूजिंग द weather data, product data, heat rejection algorithm, it is possible to model the annual performance of the evaporator. This is the particularly uses when comparing the seasonal performance of the different units of equipment, particularly an oversized unit versus any traditional alternative. Consider two units with the similar heat rejection rating yet different fan horsepower. They can consume vastly different amounts of energy over the course of period. For example, एक 40 HP का जो मॉडल है वो rated for the approximately 500 nominal tons will consume more energy and oversize. 5 HP model also rated for the approximately 500 nominal tons. The greener and oversized model may come in initial cost premium. However, this early premium will more than offset by the saving that result from the energy reduction offered by the such a design. टेबल नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि they can consume vastly different amount of energy over and course of year. तो यहाँ पे एक 40 HP का मॉडल है जो 500 TR तक है, जिस will consume more energy fan than oversized. वो हमारा बहुत एडिशनल एनर्जी हमारा कंज्यूम करेगा जो कि दूसरा ओवर साइज के अलावा 15 HP मॉडल आल्सो रेटेड 500 टन्स आल्सो ओके। द ग्रीनर ओवर साइज मॉडल में कम एट इनिशियल कॉस्ट प्रीमियम हाउएवर दिस इज अर्ली प्रीमियम विल मोर देन द ऑफसेट बाय द सेविंग दैट रिजल्ट फ्रॉम द एनर्जी रिडक्शन ऑफसेट्स। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं जरा कि हमने यहाँ पे ट्रेडिशनल एक 502 TR का एक चिलर लिया है, दूसरा 5 ओवर साइज
57 TR का एक चिलर लिया है। दोनों का एवरेज टेम्परेचर जो है हमने 7 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा है। ट्रेडिशनल का 7 डिग्री फ़ारेनहाइट है और ओवर साइज का 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो जो फ़ैन HP है जो हमारा ट्रेडिशनल का है वो 40 है और ओवर साइज का जो है वो 15 HP है। तो यहाँ पे हम वन फैन स्पीड जो ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करते हैं, जो ट्रेडिशनल है जो 502 TR का है, उसका जो हमारा निकल के आ रहा है, उसका कॉस्ट निकल के आ रहा है डॉलर्स में 18,000 और दूसरा वाला उसका निकल के आ रहा है 7,000। तो टोटल मिला के हम बात करते हैं एनर्जी सेविंग जो रहेगा, द NAV सेविंग जो रहने वाला है वो हमारा 575 उसमें आ जाएगा, $75,000 के आसपास आ जाएगा। ओके assumptions। तो इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमको यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि हमको सेम CFM का सेम मोटर का जो पुराने लगे हुए हैं उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। दूसरा कि 40 HP का मॉडल 500 TR दे सकता है। सिमिलरली 15 HP का मॉडल भी 500 TR दे सकता है। उसमें हम तो थोड़ा क्लासिफिकेशन देते हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो बोलना चाह रहा है एक बार देख समझ लेते हैं। As explained the design, there are the great benefit using the physical larger cooling towers than the typical circumstances usually decided, ठीक है। However, going to traditional 7 degree Fahrenheit, traditional 7 degree 3.96 approach temperature and 2.9 degree temperature shape the reduce the energy. The lower HP of oversized towers significantly reduce the energy penalty of the fan motor, going from 40 HP to a 15 HP reduce the energy consumption by 54%. A fan operated BFD controls, तो उस पर भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटा जो हमने समझा कि सबसे पहले चिलर में हमको 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि सबसे पहले जो हमारा चिलर आ रहा है क्या वो सही आया हुआ है। आज के समय में हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल्स हैं, स्क्रू चिलर्स हैं, रेसिप्रोकेटिंग चिलर हैं। तो जिसका सबसे पहले नंबर पे हम जब सेलेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमको अपने यूजेस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमारा चिलर जो है हमको कौन सा बेटर है और उसमें से जो सबसे ज़्यादा अच्छा निकल के आता है उसके ऊपर ही हमको जाना चाहिए। हम नेक्स्ट उसमें ये डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट जो था कि हम जितने भी चिलर्स हैं वो हमारे BFD बेस होने चाहिए। कूलिंग टावर्स जितना सिस्टम हमारा BFD बेस होना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा टेम्परेचर आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चिलर्स में। इनलेट टेम्परेचर अगर मैं 8 डिग्री चिलर की 1.5 डिग्री जो चिलर का टेम्परेचर इंटेंट टेम्परेचर रिलीज करता हूँ तो मेरा कंप्रेसर पे जो लोड होता है वो 1.5 डिग्री मेरी चिलर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये सब पैरामीटर्स है जिसको हम लोग डिस्कशन में ले सकते हैं। दूसरा जो है तो चौथा पॉइंट जो है वो हम दोबारा भी डिस्कस कर लेते हैं, बेल टू व्हील बेस्ड एनर्जी यूज रिडक्शन। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है बेल टू व्हील बेस्ड एनर्जी कंजप्शन आइडेंटिफाई द एनर्जी सेविंग बेस्ड ऑन द ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी एट द सोर्स ऑफ द पावर जनरेशन फॉर द साइट। Power plant typically have the choice of the cooling between the air-cooled dry system or bed-cooled evaporative system. This choice is an important decision that will drastically affect how much energy is used over the lifetime of the plant. Air-cooled system may minimize Air-cooled system may minimize water uses at the plant but require too much power to do so efficiently. Dry cooling is imperatively in power plant because the reduce of the thermal performance. Dry cooling requires heat to be transferred to the atmosphere without evaporations, which is also known sensible heat transfer. Sensible heat transfer is less efficient than the evaporator heat transfer. In fact, the air-cooled system achieves the same thermal performance as bed-cooled system. And a footprint twice as larger is required for the required. This makes power plant larger, mechanically more complex, which will incur high maintenance energy costs. The associated energy penalties with using the air-cooled system over the bed-cooled system in power plant is substantial. The sensible heat transfer that air-cooled system rely upon the directly related to the dry wall temperature which can be fluctuated from the 20 degree Fahrenheit to 25 degree Fahrenheit. ये air cool system are more efficient when they can maintain the turbine pressures and at ambient dry
a temperature range up to 30 to 35 degree. Yet air-cooled system will find difficulty maintain the optimum condition as the ambient temperature increases, which results in decrease the power consumption significantly. So power generation facility that uses the water to do in two steps. Once through the system that continuously pump the water through the plant in order to provide the cooling. The continuous source of the water typically really provide the seas and rivers. Closed loop system that discharge the heat by using the evaporator system. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हमारा जो चिलिंग सिस्टम है वो भी हमारा क्लोज लूप रहना चाहिए. ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम में हम लोग बहुत सारा एनर्जी सेविंग कर सकते हैं विद पुटिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ द कंट्रोल्स इन प्लेस. तो कंक्लूजन में अगर हम जाते हैं तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे एक बार चीज़ देख लेते हैं कि यूजिंग द स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन हैज ए ड्यूल इम्पैक्ट ऑन द कंजर्विंग द एनवायरमेंट एंड लोअरिंग द कूलिंग टावर सिस्टम्स. यूज BFD टू ऑप्टिमाइज द फैन स्पीड कंज्यूमिंग द लेस एनर्जी. नंबर 1, the cooling tower design and operating changes to operate the chiller as efficiently as possible. Chiller account for more than 85% of the cooling tower chilling chiller system energy. तो इसमें सब देन जो तीसरा पॉइंट है डिजाइन ए यूनिट टू हैव द लोअर अप्रोच टेम्परेचर. नंबर 5 पॉइंट ओवरसाइज यूनिट टू एक्यूमुलेट टू द लोअर HP फैंस. Number 5, the fan runs at full speed at lower to entering the condenser temperature, making the chiller to less to work. And number 6 जो है use the evaporator equipment instead of the air cooled equipment at the power generation site. तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट हमने बात किया BFD हमको लगाना है जिससे हमको स्पीड वेरिएशन के थ्रू एनर्जी कम कर सकते हैं. दूसरा जो कूलिंग टावर हमारे जो लगाने हैं उसमें हमको डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टार्ट में लेते चलना है कि वो हाई इफिशिएंटली होने चाहिए क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर जो आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. और मेरा जो इवोपोरेटर है पूरे चिलर सिस्टम में 85% एनर्जी को लीड करता है. तो कंप्रेसर पे मैं एनर्जी को रिड्यूस कर दूँगा तो मेरा 1% मेरा यूज़ इम्पैक्ट आ जाएगा. दूसरा डिजाइन यूनिट टू हैव द लोअर इवोपोरेटर. कोई भी सिस्टम हमको डिजाइन करना है तो उसमें जो हमारा लोअर अप्रोच टेम्परेचर है उसको ध्यान में रखना है. और जो चौथा पॉइंट है कि ओवर साइज यूनिट को एकोमोडेट करके वहाँ पे लोअर में कैसे जा सकते हैं फॉर सेम टन तो वो हमको देखना है. और इसमें एक जो पॉइंट निकलते आता है कि हमको जो फ़ैन है एट फुल स्पीड टू लोअर द इंटरनल टेम्परेचर कंडेंसर वाटर. रन फैंस एट फुल स्पीड टू लोअर द इंटरनल कंडेंसर वाटर टेम्परेचर मेकिंग द चिलर टू लेस. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमको जो कंडेंसर जो टेम्परेचर में जो पानी आ रहा है उसके फैंस तो हमको फुल स्पीड में चलाना है. जितना मेरा टेम्परेचर जो उसका पानी ठंडा आएगा उतना ही मेरा कंप्रेसर को कम करना पड़ेगा. और जो चौथा पॉइंट है कि यूज़ द इवोपोरेटर इक्विपमेंट इंस्टेड ऑफ द एयर कूल्ड इक्विपमेंट एट द पावर जनरेशन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए और ये श्योरली हमको ये हेल्प करेगा इसमें. तो यहाँ पे अभी हम लोग समझने वाले हैं कि हमारे जो चिलर्स होते हैं तो उसमें से कौन सा चिलर अच्छा होता है और हमको कौन सा चिलर लेना चाहिए. तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो कोर्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पे HPSC मेड इजी द सिलेक्शन टिप्स ऑफ द चिलर्स कंप्रेसर्स इस पर हमने डिस्कशन किया है. तो सबसे पहले निकलते था पार्ट 1 द रेफ्रिजरेशन चिलर्स वेपर कंप्रेशन मशीन्स होते हैं. तो HVAC the applications operating on chiller water system requires the chiller package which operate either on the principle of the vapor compressions or vapor absorptions. The vapor compression system use mechanically energy in the form of the motor to drive the cooling cycles, whereas the absorption chillers use heat to drive the process. The classification of the vapor compression chillers package is by the type of the compressor depending upon the application. The chiller can be selected for the following compressor type: reciprocating, centrifugal, screw और स्क्रोल टाइप. देयर ये 4 टाइप ऑफ कंप्रेसर, 4 तरह के कंप्रेसर्स होते हैं. जब हम वेपर कंप्रेशन की बात करते हैं तो उसमें रेसिप्रोकेटिंग आता है, सेंट्रीफ्यूगल आता है, स्क्रू आता है और स्क्रोल टाइप आता है. सबसे पहले रेसिप्रोकेटिंग चिलर तो हम लोग समझ लेते हैं. तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आर कैटेगराइज्ड एज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन. दीज आर अवेलेबल इनटू 2 बेसिक टाइप: hermetic sealed units और units of open constructions. In the hermetic sealed unit, the motor and compressor are direct coupled and housed in the single casing that sealed to the atmosphere. In open construction units, the motor and compressor are in separate housing. And general open construction units have a longer service life, lower maintenance requirement, and the higher operating efficiency. The hermetic sealed units are most common, particularly in the small capacity. Single stage reciprocating machines have an ability to operate the compression ratio of the 10 to 12.
तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स होते हैं वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन होती है जो दो टाइप में आती है। हर्मेटिक सील्ड टाइप में आता है जो कि पूरा का पूरा क्लोज होता है, जिसमें मोटर और कंप्रेसर दोनों साथ में जुड़े हुए होते हैं और एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से क्लोज होते हैं। दूसरा जो ओपन कंस्ट्रक्शन आता है उसमें मोटर और कंप्रेसर जो दो होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। एडवांटेज सबसे ज़्यादा जो है ओपन कंस्ट्रक्शन का है, जिसमें कि मोटर का हम टाइमली मेंटेनेंस कर सकते हैं, कंप्रेसर का मेंटेनेंस कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली बेसिस पे, जिसका लाइफ और मेंटेनेंस लॉस भी कम होता है। तो ये दोनों के बीच में एडवांटेज है। नाउ द कैपेसिटी कंट्रोल इन द रेसिप्रोकेटिंग मशीन इज अचीव थ्रू द ऑन ऑफ और लोडिंग अनलोडिंग ऑफ द कंप्रेसर सिलेंडर्स। The reciprocating machines are manufactured in capacity of the from 0.5 to 150 TR। तो रेसिप्रोकेटिंग जो हमारे मशीन्स जो होते हैं उनकी कैपेसिटी नॉर्मली 0.5 to 150 TR के आसपास होती है। द मेन फैक्टर फेवरिंग द रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स इज लो कॉस्ट। द अदर एडवांटेज इज दैट द मल्टीपल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर machines can be installed too closely that the building loads and multiple units allow the flexibility to operate machine as per need. If properly managed, this could attribute the significant saving during the low loads. So major drawback is the high level of maintenance required, noise, vibrations, since the capacity is limited 150 TR. Multiple units cost more than other options. Multiple chillers configurations requires large steps and consume more energy per ton refrigerations. तो सबसे इसका जो एडवांटेज है वो छोटे साइज में आता है, तो जहाँ पे एनर्जी के यूजेस कम है टन के यूजेस कम है, तो वहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। कॉस्ट इसका जो मशीन का कॉस्ट होता है वो कम होता है। एडवांटेज जो है कि हम मल्टीपल यूनिट्स को एक जगह लगा के एक बिल्डिंग में तो वहाँ पे अलग लोकेशन पे सप्लाई दे सकते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका मेंटेनेंस तो बहुत ज़्यादा है, नॉइस वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, कैपेसिटी इसकी लिमिटेड है। तो ये सब चीज़ें देखते हैं और जिसका जो एनर्जी पर टन जो है वो भी ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए हमको इसको बहुत ध्यान में रखते हैं हमको चिलर का सिलेक्शन करना चाहिए। हम दूसरे चिलर में बात करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल चिलर। सेंट्रीफ्यूगल चिलर आर कैटेगराइज्ड एज अ वेरिएबल वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट यूनिट्स लाइक रेसिप्रोकेटिंग मशीन। दीज आर आल्सो अवेलेबल इन द hermetic and open constructions. Commercially, the hermetic sealed units are more widely used, and despite of the lower operating efficiency, the centrifugal chillers for refrigeration application are generally designed for a fixed compression ratio of 18, and the capacity control is achieved through the use of the inlet vents on the impellers that restrict the refrigerant flow. The centrifugal chillers are manufactured in capacity of from 90 to 2000 tons. The main factor favoring the centrifugal machines is high operating efficiency at the full load and compact size and availability in larger size. तो सबसे इसका जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल जो चिलर्स होता है वो वेरिएबल वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट यूनिट की रहता है। इसमें भी सिमिलर हर्मेटिक और ओपन कंस्ट्रक्शन सिस्टम रहता है जो कि हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग में भी था। इसमें कंप्रेशन जो रेट होता है वो हमारा 18 रहता है, जो कि रेसिप्रोकेटिंग में 10 to 12 के आसपास रहता है। तो ये हमारे मैक्सिमम लोड पे ये बहुत अच्छा होता है। जहाँ पे लोड ज़्यादा है वहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं और एफिशिएंटली काम करेगा। इसकी जो लिमिट आती है वो 90 टन से लेकर 2000 टन के आसपास आती है और मेन फैक्टर जो रहता है इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी एट फुल लोड इज फिनोमिनल। कॉम्पैक्ट साइज अवेलेबिलिटी इन लार्जर साइज वो भी हमको इसका एडवांटेज है। द बिगेस्ट ड्रॉबैक of the centrifugal machine is very poor part load performance and the inability to operate the low tooling loads. At extreme low load, these chillers are prone to conditions known as a surging. The main limitation is that these are not suitable for the air-cooled condenser options and require water and cooling water. तो इसका सबसे बड़ा ड्राबैक जो है कि ये लो लोड रहेगा तो वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिर जाता है और जिसके कारण ये इसमें एक जो प्रॉब्लम चिलर्स आर प्रोन टू कंडीशन नोन एज द सर्जिंग आना शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ा इसका ड्राबैक है। उसके बाद में जो तीसरा चिलर आता है वो होता है स्क्रू चिलर। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रोटरी और स्क्रू चिलर लाइकली रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। रोटरी इज अ वाइडर टर्म that may include the vane, centric gears, screw types. The commercially refrigeration's installation rely more on screw machines. Screw compressor are available in the several designs, both single screw, twin screw with oil-free and oil-injected design in both the types. Twin screw oil-injected compressors are slightly more efficient at the moderate compression ratio.
Twin screw compressors have the ability to operate the compression unit to up to 30, and the units are available in the both hermetic sealed and open constructions. The capacity control in screw compressor is achieved through a movable slide stop balls, which will vary the compressor's internal volume ratio to achieve the optimum energy consumptions during the part load. Screw chiller are available in the capacity ranging from the 10 to 1000 tons, even higher from the few manufacturers. The factor favoring the screw chillers is their compact size, light in weight, quite vibration free operating, and high energy efficiency. Both are in form of the part load operations. The major drawback in their high cost. For smaller load, reciprocating machines are less expensive to purchase. For larger load, centrifugal machines cost is less. इनिशियल कॉस्ट इसमें जो हमारा स्क्रू चिलर का रहता है, तो उसमें ये सबसे अच्छा एडवांटेज जो है, पहले तो लाइट वेट होते हैं, क्वाइट सिंपल और वाइब्रेशन फ्री रहते हैं, हाई एनर्जी एफिशिएंसी फुल और पार्ट लोड दोनों में रहता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्राबैक जो है इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, जो कि हम यहाँ पे हम लोग स्मॉलर लोड के लिए रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स ले सकते हैं और लार्जर लोड के लिए सेंट्रीफ्यूगल ले सकते हैं। तो वहाँ पे हमको यहाँ पे 20 का लोड है, जहाँ पे दोनों लोड में वेरिएशंस है, वहाँ पे हमको स्क्रू चिलर्स के ऊपर जाना चाहिए। नाउ चौथा, स्टोरल चिलर्स हैव बीन यूज्ड द कमर्शियल प्रैक्टिस ऑफ द सिस्टम दैट हैव बीन कैपेसिटी लेस देन 30 TRs on such small size. These do not affect the life cycle economic and drastically therefore not discussed further. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हमने भी यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग को समझ लिया और सेंट्रीफ्यूगल को समझ लिया, देन हमने स्क्रू को समझ लिया और स्टोरल को भी समझ लिया। नाउ कंपैरिजन ऑफ द वेरियस कंप्रेसर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको जो कौन सा कंप्रेसर लेना है, कौन से चिलर में जाना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना। तो नाउ वी आर गोइंग डिस्कसिंग दिस वन। द इंस्टॉल कॉस्ट इज द कैपिटल ऑफसेट ऑफ द वाइटल इकोनॉमिक एंड पैरामीटर टू सिलेक्शन, बट ए मोर मीनिंगफुल इकोनॉमिक कंपैरिजन बेस्ड ऑन द वाइडर टेक्निकल framework. These sections provide relative comparison of the three most common chillers compressors. नंबर 1 कैपिटल कॉस्ट, पहला पैरामीटर जो हमने लिया है कैपिटल कॉस्ट का लिया है। कैपिटल कॉस्ट आर टेकन फर्स्ट। द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आर द चीपेस्ट फॉलोड बाय द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। स्क्रू कंप्रेसर आर यूजुअली मोर एक्सपेंसिव बाय 10 to 15% देन द सेंट्रीफ्यूगल एंड द सेम ऑपरेटिंग कंडीशंस। तो हमारा जो सबसे पहला जो आता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होते हैं सबसे सस्ते होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल से ऊपर होते हैं, और जो स्क्रू कंप्रेसर्स होते हैं उनकी कॉस्ट 10 to 15% ज़्यादा होती है फॉर सेम ऑपरेटिंग कंडीशंस। नाउ दूसरा पॉइंट जो आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। द एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू कंप्रेसर्स एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर व्हेन ऑपरेटिंग एट द सिमिलर कंप्रेशंस रेशियो इज सिमिलर. The screw compressor have the ability to operate at the 30 compressions ratio. It allows much efficient operation than the reciprocating compressor. Typical chiller efficiency between 0.7 to 0.8 kW per ton, making rotary chillers more efficient than the comparable the size reciprocating but less efficient than the centrifugal. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो लास्ट में बोला गया है कि दिस चिलर एफिशिएंसी, जहाँ पे हम स्क्रू कंप्रेसर की बात करते हैं वहाँ पे हमको जो एनर्जी पर टन मिलता है वो 0.7 to 0.8 kW में हमको पर टन मिल जाता है। और रोटरी चिलर्स मोर एफिशिएंट देन कंपेयर टू द रेसिप्रोकेटिंग। जो हमारे रोटेटिंग कंप्रेसर्स जो होते हैं जो उसमें रेसिप्रोकेटिंग से अच्छे होते हैं इन टर्म्स ऑफ द एफिशिएंट, और जो सेंट्रीफ्यूगल होते हैं उससे वो कम होते हैं अगर उनकी फुल यूटिलाइजेशन की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि एनर्जी कंजप्शन पर टन रेफ्रिजरेशन इज हाईएस्ट with the reciprocating machines followed by the screw compressors, and centrifugal compressor consume least power at full load operations. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बार बार हमको ये समझने की जरूरत है कि हमने यहाँ पे जो पैरामीटर डिस्कस करने वाले हैं वो kW/TR निकालने वाले हैं। तो इसमें पहला निकल के आता है रेसिप्रोकेटिंग, जिसका kW/TR जो रहता है 0.85 रहता है, 0.85 रहता है। तो दूसरा जो हम बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल का, तो सेंट्रीफ्यूगल जो यूनिट हमने डिस्कस किया था कि 0.70 to 150 TR ग्रेटर देर पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसका जो यूनिट रहता है 0.70 फॉर 150 TR, मतलब इसका जो वैल्यूएशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो 0.7 kWh/TR हमको मिलेगा जो हमारी यूनिट है 150 से बड़ी है। 0.63 TR मिलेगा हमको जिनका यूनिट जो है 300 TR से बड़ा है। 0.52 मिलेगा हमको जिनका यूनिट जो है हमारा 300 TR से छोटा है। 300 TR 0.2 मिलेगा ग्रेटर देन
to 300 TR। तो इसमें हमको समझना चाहिए कि अलग अलग इसमें अलग अलग आता है। इसका रेंज ऑफ 5.52 to 0.7 के बीच में वेरी करता है। स्तरू का जो हमको मिलता है 0.79 ग्रेटर देन 150 TR चिलर पे मिल जाता है, और 0.71 जो मिल जाता है हमको ग्रेटर देन 150 और लेस देन 300 TR में मिल जाता है। और इसमें हमारा जो 0.63 जो है वो हमको 300 TR 300 TR के आसपास मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि रेसिप्रोसिटी में जो हमारा TW पर टन जो रेशियो निकलते आता है वो 0.8 निकलते आता है। सेंट्रीफ्यूगल में अलग अलग डायमेंशन है 0.7 to 0.5 निकलते आता है, और जो स्क्रू होता है उसका 0.79 to 0.63 निकलते आता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि चिलर एफिशिएंसी बिटवीन 0.7 to 8 make in rotary chillers more efficient than to the comparable sized reciprocity but less efficient than the centrifugal। Now operating cost हम लोग बात करते हैं, तो operating cost at part load efficiency, the efficiency at the part load operation very important aspect of the analysis। Overall economic on the life cycle basis demand much more than the peak loading। One must look at how those load vary than daily and seasonal basis। Remember the typical chiller operate less than the peak load more than 90% of the time। The screw here, number one, the screw compressor offer initiate reduction at 100 to 0% to allow the obtain higher efficient capacity from the same machine and afford good part load efficiency। The centrifugal machines accomplish the capacity reduction in stages। When building the load decreases, the chiller respond by the partially closing the inlet vents to restrict the refrigeration flow, and while this control methods is effective down to about 20% of the chiller rated output। This it result the decrease the operating efficiency। For example, a chiller rated at the 0.6 kW per ton at full load required as much 0.9 kW per ton while light load। Since chillers typically operate nearly full load less than 10% of time, and part load operating characteristics significantly impair the annual energy requirements। The reciprocity compressor step capacity control is most efficient at the minimum load, and then the ट्वेन स्क्रू कंप्रेसर्स। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है कि हमारा जहाँ पार्ट लोड की बात आती है वहाँ पे 100 से 0% पे हमारा स्क्रू कंप्रेसर बेस्ट है, जो हमको 0.7 से 0.8 के आसपास kW पर टन देता है। जहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल चिलर के बारे में, तो वहाँ पे हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल चिलर जो है वो उसमें पार्ट लोड के ऊपर बहुत अच्छा काम नहीं करता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताऊँ, अगर उसकी फुल लोड में 0.6 kW लगता है 8 टन जनरेट करने में, तो वही जब लोड वेरिएशन होगा और लोड हमारा पार्ट लोड्स में आएगा तो वो